everyone, and welcome to Supergrads. And today we will be talking about another important selection criteria, that is IIM Ahmedabad selection criteria. Yes, a much awaited video. I hope आप सब सोच रहे होंगे कि हमने बैंगलोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस कर लिया है, लखनऊ का कर लिया है, ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट शिलोंग्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो अहमदाबाद अभी क्यों पीछे है. सो नाउ वी आर हियर विद अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया एज वेल, wherein we'll be discussing each and everything in depth कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, हाउ डू दे कैलकुलेट योर स्कोर्स, कॉम्पोजिट स्कोर कैसे जनरेट होता है. विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है IIM अहमदाबाद में. सो इट इज डेफिनेटली थ्रू योर कैट स्कोर्स. अब क्योंकि रिसेंटली कैट 2023 हुआ है तो हम 2024 से लेके जो 2026 का बैच है हम उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू 2024-2026 बैच ऑफ PGP at IIM Ahmedabad is a two-step process. तो ये एक दो steps का process होता है. In first step, candidates are shortlisted for the analytical writing test, that is AWT, and personal interview. Now IIM Ahmedabad ही इकलौता एक ऐसा IIM है या B स्कूल है जहाँ पे AWT होता है, WAT नहीं होता, written ability test नहीं होता है, but rather they conduct analytical writing test in which basically they give you a situational based kind of a question जिसके ऊपर questions भी पूछे जाते हैं and all those things. So basically they are judging your analytics over there, your logic over there, कि what is the logic you apply over there. So that is how it happens over here. From among the candidates who have a valid CAT 2023 score, yes, again eligibility criteria CAT तो हमें लिखना ही है. Next, who have applied to the program and who satisfy the eligibility criteria for the program. Next, an important note over here is given is कि foreign nationals जो हैं, as in the foreign passport holders staying in India must take the current version of GMAT exam. जो foreign nationals हैं, they cannot be selected on the basis of CAT, so they will have to write the GMAT exam. This is just for the foreign national students. Rest everyone is eligible through the CAT score, as we all know. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हाउ इज द शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया डन फॉर द PGP बैच. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एज इन यूर स्क्रीन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, एज इन आपके एकेडमिक्स हो गए और आपका कैट स्कोर हो गया. कैट स्कोर के बेसिस पे कि आप कट ऑफ क्लैरिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देन योर 10th के मार्क्स, योर 12th के मार्क्स, योर बैचलर्स के मार्क्स एंड योर वर्क एक्सपीरियंस. सो दीज आर द 5 things that are looked into the preliminary screening, as in when you're getting selected or you getting your first call for the AWT and PI process के लिए आप कैसे shortlist होते हो. So that is what we are looking here. तो minimum cut off CAT का यहाँ पे क्या होना चाहिए, the percentile ranks have been given over here. Now don't confuse yourself, यहाँ पे PVARC means कि percentile rank of verbal ability and reading comprehension. Same goes for DILR, as in data interpretation, logical reasoning, and same goes for QA, that is quantitative aptitude. Now here, if I talk about the general and EWS candidates, so 70, 70, 70 is the minimum cutoff that you need to get. और ओवरऑल यहाँ पे आता है आपका जो परसेंटाइल रैंक दैट इज 80, दैट इज ओवरऑल 80 परसेंटाइल इज द मिनिमम कट ऑफ. नाउ वी ऑल नो हर जगह एट एवरी वेबसाइट हम किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दे गिव द मिनिमम कट ऑफ, बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि सिर्फ 80 परसेंटाइल में ले आऊंगा या ले आऊंगी तो मेरा अहमदाबाद हो जाएगा. इट्स नॉट ट्रू. Definitely Ahmedabad is one such IIM which gives profile based calls as well. वो लोग प्रोफाइल को भी बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं. तो हो सकता है अगर आपका कैट में 85 आया हो या मे बी 88 आया हो तो यू माइट गेट अ कॉल, दे माइट लुक इनटू योर प्रोफाइल. अगर आपका प्रोफाइल बहुत फिनोमिनल है और अगर आपका कैट का स्कोर 80s में है, एज एन 85 या 88 परसेंटाइल है, तो यू माइट गेट अ कॉल ओवर हियर, बट देन अगेन चांसेस आर वेरी लो. बट आपका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वी ऑल नो हैज टू बी 98 और 99 परसेंटाइल ओवर हियर.
Next, if we talk about the NC, OBC and transgender, so 65, 65 and 65 for all the three sections is the minimum cutoff and overall यहाँ पे वो बन जाता है 75. SC के लिए it's 60, 60, 60 and the overall becomes 70. ST के लिए it's 50, 50, 50 and overall becomes 60. PWD as in general, EWS, NC, OBC come transgender, SC के लिए it's 60, 60, 60 and then it becomes 70 the overall cutoff. PWT, ST is also a different category. उसके लिए 50, 50, 50 is the minimum percentile rank that they have set. Overall comes around to 60. So this is the minimum cutoffs for CAT 2023 that we are talking about, जो अभी recently हुआ है. Recently जो बच्चे shortlist हुए हैं for IIM Ahmedabad, we are talking about the selection criteria for those कैंडिडेट्स. अपकमिंग बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हुआ राइटिंग कैट 2024 और कैट 2025. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितने स्कोर पे ये लोग कॉल देते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं. 10th में अगर आपके मार्क्स कम हैं, 12th में अगर आपके मार्क्स कम हैं, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट दे हैव सेट कि वो आपको कितना एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स. नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर. नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, कॉम्पोजिट स्कोर होता है, जनरेट होता है. यहाँ पे ये लोग उसको एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर बोलते हैं. सो बेसिकली there are four things that make that generate your application rating score. A here stands for the marks that you've obtained in your 10th class. B stands for marks you've obtained in your 12th class. C is for your bachelor's या आपकी graduation में जितने भी marks आए हैं उसके लिए. D here stands for your work experience. अगर आपका work experience है तो उसके लिए भी you have certain marks over here based on the percentage of marks obtained in 10th or 12th standard depending upon the stream wise. अब यहाँ पे जो बी वाला क्राइटेरिया है उसको स्ट्रीम वाइज भी ये लोग डिफाइन किया है इन लोगों ने कि स्ट्रीम वाइज भी ये लोग जज करेंगे कि अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सो डेफिनेटली यू विल गेट एज ओवर हियर एंड डेफिनेटली द परसेंटाइल रेंज जो है वो भी डिफर करता है फ्रॉम ईच स्ट्रीम. Next, the bachelor's degree program depending upon the discipline and the work experience as on July 31st, 2023. तो they have also mentioned the date कि इस date तक ही work experience वो लोग consider करेंगे. For different streams discipline, the equivalent ARs as in the application rating score are arrived by using sort of percentile equivalence of the score distribution using the previous year's CAT data. Now here what they have done is कि जो academic disciplines की हम बात कर रहे हैं कि जो bachelor's degree में देखा जाता है, so they have different academic disciplines. उसका डिटेल्ड जो चार्ट है या डिटेल्ड जो टेबल है वो इनके वेबसाइट पे भी ऑफिशियली दिया हुआ है कि इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड सो व्हाट इज दैट क्राइटेरिया विच इज देयर या कितने मार्क्स आपको मिलते हैं उसमें. सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर. हियर आई हैवंट मेंशन्ड दैट बट डेफिनेटली यू कैन चेक आउट IIM अहमदाबाद वेबसाइट. वहां पे वो सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है academic discipline wise. Okay, now let us understand the very first table as in आपका 10th का score. That is अगर आपका जो percentile है if it is less than or equal to 55 then you get 1 mark over here. If it is greater than 55 and equal to 60 or less than 60 then you get 2 over here. 60 से 70 के बीच में है तो 3. 70 से 80 के बीच में अगर आपका परसेंट है 10th में तो 5. 80 से 90 के बीच में है तो 8 और 90 से ज्यादा है तो यू गेट 10 मार्क्स ओवर हियर. सो आई होप इट इज क्लियर कि 10th के जो मार्क्स हैं आपके उसको ये लोग किस कैटेगरी में कितना कितना रेटिंग स्कोर रखते हैं. सो दैट इज गिवन ओवर हियर. सेम गोज फॉर 12th एज वेल. उसके लिए भी दे हैव डिफाइंड द परसेंटेज. अब यहाँ पे स्ट्रीम वाइज इन्होंने रखा है. सो डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम का जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पे ज्यादा रखा है इन्होंने. एज वी ऑल नो कि जनरल इंजीनियरिंग मेल स्टूडेंट्स या फीमेल स्टूडेंट्स का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है. सो योर साइंस स्ट्रीम में इफ इट इज इक्वल टू 55 और लेस देन 55 तो इट्स 1. 55 से 60 के बीच में है तो 2. 60 से 70 है तो यू गेटिंग अ 3 स्कोर. 70 से 80 है तो 5. 80 से 90 है तो 8 और अगर 90 से ज्यादा है तो 10. अब यहाँ पे
सेम कॉमर्स में कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, जैसे यहाँ 55 है तो द रेंज बिकम्स योर 50 से 55 हो जाएगा, तो यू गेटिंग 2 मार्क्स। 55 से 65 होगा तो यू गेट 3। 65 से 70 के बीच में अगर आपका परसेंट है ट्वेल्थ में तो 5। 75 से 90 है तो 8, एंड अबव 90 है तो 10। ओके, नेक्स्ट योर फॉर आर्ट स्टूडेंट्स अगेन कॉमर्स से भी फिर कम हो जाता है यहाँ पे परसेंटाइल रेंज एंड कट ऑफ एंड एवरीथिंग। फिर 45 है तो 1, 45 से 50 के बीच में है तो 2, 50 से 60 के बीच में है तो 3, 60 से 70 है तो 5, 70 से 85 के बीच में है तो you're getting 8 मार्क्स, एंड 85 से अगर ज्यादा है तो you're getting 10 मार्क्स। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा बेनिफिट की बात करूँ तो डेफिनेटली कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग दैट ओवर द साइंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बैचलर्स डिग्री वाइज भी इन लोगों ने जो है वो डिफाइन करके रखा हुआ है कि कितने रेंज में आपका परसेंटेज होगा तो यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर मार्क्स। एज आई वाज सेइंग, AC1, AC2, AC3, AC4, AC6 एंड AC5, these are the names of the academic disciplines। तो इनका एक अलग चार्ट है academic disciplines का। मे बी AC1 would be for all the कॉमर्स और मे बी द बीकॉम स्टूडेंट्स हुआ देयर, AC2 शायद आर्ट स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो देयर आर डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स दैट आर गिवन ओवर देयर इन द वेबसाइट इटसेल्फ, सो यू कैन लुक एंड यू कैन चेक कि किस पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन में आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है, आपका जो बैचलर्स का डिग्री है फॉल होता है। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फिर किस बेसिस पे दे आर गिविंग यू द रेटिंग स्कोर ओवर देयर। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 10th मार्क्स, 12th मार्क्स और बैचलर्स का मार्क्स। अब हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की। नाउ देयर आर सम कैंडिडेट्स जिनका वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 मंथ से कम है तो यू स्ट्रेट अवे गेट अ 0 ओवर देयर, बिकॉज 12 मंथ से कम का वर्क एक्सपीरियंस वो लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर 12 मंथ से ज्यादा है और 36 मंथ्स के इक्विवेलेंट है या उससे कम है तो देन देयर इज अ फॉर्मूला दैट दे यूज, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर into the number of months of work experience minus 11. Multiplication factor here is 0.20 that they are considering over here. Next, अगर 36 मंथ से ज्यादा का आपका वर्क एक्सपीरियंस है so you're getting 5 marks. So the more मतलब ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी they do not consider, they have given a स्पेसिफिक रेंज कि अगर इतना वर्क एक्स होगा तो इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी होता है तो दे रिजेक्ट द कैंडिडेट्स समटाइम्स। ओके, now on the basis of that your application rating score is decided as in the 4 factors that we discussed: your 10th score, your 12th score, your bachelor's as in your graduation ka score, and your work experience ka score, which is the D part over here. Normalized AR score of an applicant is equal to the AR score divided by average of top 50 AR scores from the applicant's pool. Definitely आपके साथ साथ और भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका AR स्कोर निकलेगा who will be getting shortlisted for the AWT and PI round. So उनके भी एप्लीकेशन स्कोर से they will come out on the average applicant rating score, and then they will be deciding as in who will be shortlisted for the first call as in for AWT and the PI process. ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट कि AWT PI के लिए और क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं, हाउ डू दे शॉर्टलिस्ट एग्जैक्टली कितने राउंड्स में। सो नंबर 1, वी हैव डिस्कस्ड द एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। नाउ द composite scores have been calculated. IIM Ahmedabad will shortlist candidates for AWT PI round. IIM Ahmedabad conducts 2 rounds of shortlisting. This step can be a little confusing. They have a lot of formulas over here. So I will not be diving deep into those formulas that is given on their website. We will be understanding कि वो finally किस चीज को ज़्यादा categorize करते हैं. So round 1 में from academic categories in the top 5% of the respective AC are shortlisted on the basis of their composite score. तो आपको composite score होगा तो जिन भी students का काफी अच्छा composite score आया होगा in the first application rating the scoring round, so they will be shortlisted to be eligible part of top 5%. You need to meet a certain criteria. अब उन लोगों का भी एक criteria होता है which is given over here depending on your category, as in जो भी आपका category है, be it general, EWS, SC, ST, you should meet the minimum CAT 23 cutoff sets by IIM Ahmedabad.
तो डेफिनेटली पहला कंडीशन तो ये है कि कैट का कट ऑफ, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको वो जो है क्लैरिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, P greater than or equal to minimum cutoffs mentioned in the table. P is the average of percentages of marks scored in 10th and 12th examination. Now here they will take out the average of your 10th and 12th examination, and then that is the second criteria that is required for you to be eligible for the AWT and PI process. नेक्स्ट, मिनिमम कट ऑफ पी अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन इन डिफरेंट कैटेगरीज. जैसा कि हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ्स मेंशन ओवर हियर. कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, तो 80 शुड बी द मिनिमम परसेंट दैट यू शुड बी हैविंग. एनसी ओबीसी हो तो 75 होना चाहिए, एससी हो तो 70, एसटी हो तो 65, जनरल पीडब्ल्यूडी हो तो 70, पीडब्ल्यूडी एसटी हो तो 65. सेम यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी दे हैव मेंशन कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कट ऑफ फॉर टेकिंग आउट दैट एवरेज, एज इन योर 10th एंड 12th का एवरेज का स्कोर. Third criteria, finally, your percentage of marks in bachelor's examination should be greater than or equal to the minimum cutoff percentage to be set at the 80th percentile of your percentage of marks respective academic category to which you belong. Now here they've clearly mentioned कि आपका जो graduation का score होना चाहिए वो 80th percentile या 80 percentile के around ही होना चाहिए for you to meet that criteria to reach to the top 5% of that crowd who is eligible for AWT and PI process. Next, round 2 की अगर मैं बात करूं, after candidates from round 1 have been shortlisted, the additional number of candidates, as in जो candidates बच गए हैं, they will be shortlisted for AWT. PI will be selected on the basis of the composite score. अब उनका जो भी composite score आया होगा उसके basis पे they will be shortlisted. Additionally, this is important, you also need to meet the minimum क्राइटेरिया 1 एंड 2. तो जो पहला और दूसरा क्राइटेरिया था वो भी आपको मीट करना पड़ेगा अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है एडब्ल्यूटी और पीआई के लिए. दैट इज योर कैट स्कोर एंड योर 10th एंड 12th का एवरेज जो है, जो कट ऑफ हमने डिस्कस किए, उतना आना चाहिए. नेक्स्ट, cut off set by IIM Ahmedabad, plus you need to meet the minimum cut off set by IIM Ahmedabad for your average of your 10th or 12th marks, as I discussed. Next, and the final thing that gives you the call letter or the admission letter is कि this is the final score or the final rating that is decided by IIM Ahmedabad कि आपको, now that your AWT PI round is complete, IIM Ahmedabad will generate a new composite score. तो एक नया composite score होगा. आप जब AWT और PI के लिए shortlist हो जाओगे, आपका PI और AWT round हो जाएगा, उसके बाद the components of the composite score and their corresponding weights are this. Now this is again a formula that they have, पर हम डायरेक्टली इस टेबल को पर्टिकुलरली समझ लेते हैं कि आपका पर्सनल इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 50 आपको दिया जाता है, एज इन 50 इज द वेटेज दैट दे आर गिविंग टू द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो सबसे ज्यादा वेटेज दे हैव गिवन टू पर्सनल इंटरव्यू. एडब्ल्यूटी को दे हैव गिवन 10, एज इन जो आपका एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट है उसको 10 मार्क्स दिया है यहाँ पे उन्होंने. कैट स्कोर, एज इन आपका जो कैट का स्कोर है वो फाइनल एडमिशन राउंड में कितना रोल प्ले करता है, सो दे हैव गिवन 25 मार्क्स टू योर कैट स्कोर. देन योर एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, एज इन जो हमने आपका 10th का 12th का मार्क्स कैलकुलेट किया, योर बैचलर्स मार्क्स, योर प्रोफाइल एंड ओवरऑल, जिसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर बना है प्रीवियसली अक्रॉस डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, उसको दे हैव गिवन 15 मार्क्स ओवर हियर. सो एज यू कैन सी कि मैक्सिमम वेटेज अभी भी पर्सनल इंटरव्यू और AWT राउंड को ही दिया गया है. So it is very important that you perform your best in the AWT and the AWT and your personal interview. So these two things are still in your hands. We understand कि आप अपना academics, past academics जैसा भी गया हो आप उसको change नहीं कर सकते हो, but these two things are still in your hands to perform your best to get shortlisted or selected for this particular college or particular IIM, that is IIM Ahmedabad.
Okay, students, so that was it from my side with regards to the selection criteria of IIM Ahmedabad. We've discussed everything, as in how they reach to the final output, how they calculate your scores, and everything. If you have any further doubts, then you can definitely pin your doubts in the comments below. And if you want us to come up with more such videos, then do drop in your suggestions in the comments. We'll see you next time. Till then, stay tuned to Supergrads.